نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ طیبہ ڈاٹ کی طرف سے ہم آپ کو ایک اہم پیغام آج دینا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ النحل کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اور کس جامعیت سے وہ تمام پہلو بیان کیے ہیں جو انسانی زندگی میں، انسانی معاشرت میں اور انسانوں کے تمام معاملات میں بہترین تعلیم ہو سکتے ہیں، اور ان سے بہتر تعلیم کسی اور مذہب میں اور کسی اور فکر میں آپ ڈھونڈے سے بھی تلاش نہیں کر پائیں۔ آج کا ایک خاص موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل، مساوات۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، اور عورت کے حقوق بھی مردوں کے حقوق کے برابر ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، اور ہم اس کے خلاف کسی مہم کا حصہ بھی نہیں بنے، لیکن چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جس طرح ان کے ذمہ کچھ ذمہ داری ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں ایک دستور کے مطابق، ایک معروف طریقے کے مطابق۔ اور قرآن مجید نے بلا شبہ یہ بھی کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں میں سے بھی بعض مردوں کو دوسرے مردوں پر فضیلت حاصل ہے، عورتوں میں بھی بعض عورتوں کو بعض عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ یہ فضیلت کے درجات جو ہیں ان کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو ہی بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو فضیلت اور درجات کے کم اور زیادہ ہونے پر کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، اور کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ البتہ عورت اور مرد کے جو باہمی تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ذمہ جو حقوق ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ شاید نہیں، یقیناً کوئی اور فکر، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور سائنس اور کوئی اور تعلیم اور کوئی اور مذہب، کوئی بڑے سے بڑا جو راہبر اور رہنما ہے وہ ایک بات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ یہ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ اپنے پورے کنبے کی اسی طرح کفالت اور نگہداشت کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہیے اسے، جس طرح ہر باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ ہے کہ عورتیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو یہ بات کان کھول کر سن لو کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ لباس محض سترے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ لباس عزت اور وقار کی بات ہے۔ تم ان کے لیے عزت اور وقار کا باعث ہو، اور وہ تمہاری عزت اور وقار کا باعث ہے۔ یہ تو وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے آخری ترجمان اور نمائندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں وصیت فرمائی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کو ان کے حقوق دو اور عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ آپ پوری دنیا کے تمام مذاہب اور تمام اساطیر کی فرق گردانی کر لیں، آپ کو کہیں بھی عورت کو جو وراثت ہے اس کا حق نہیں ملے گا، کہیں وہاں اس کا نظم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورہ النساء رکھا، اور پھر اس سورت میں وراثت کے تمام ضابطے بیان کر دیے
जिनके नतीजे में औरत को भी विरासत में उसका हक दिया जाएगा। इस पे कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन पे गुफ्तगू भी हो सकती है। अगर किसी को कोई इश्काल हो तो वो हमसे राब्ता करके उस इश्काल के बारे में हमसे गुफ्तगू भी कर सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मुसावात का, दुनिया के कोई अक्लमंद लोग वो बैठ जाएं और वो ये बताएं, अपने घर के किसी लॉन में, बागीचे में चले जाएं, वहां किसी पौधे, किसी दरख्त के दो पत्ते जो है उनके दरमियान हर एतबार से मुसावात साबित करें। एक ही फूल की जो पत्तियां हैं उनके दरमियान तफावत मौजूद है। एक हाथ की जो उंगलियां हैं उनके दरमियान तफावत मौजूद है। नहीं, हाथ की उंगलियों को छोड़े, हर आदमी का जो अंगूठा है उसकी जो लकीरें हैं उनके दरमियान फर्क मौजूद है। हर आदमी के हथेली में जो लकीरें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है उन लकीरों में फर्क मौजूद है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के वजूद में, उसकी खिलकत में, उसकी साख्त में, उसके वजूद की जो नशो-नुमा है उसमें और उसके जिस्मानी जो कुवा है और मजबूती और कमजोरी है इसमें फर्क रखा है। लिहाजा औरत के मर्द के साथ मुसावात के हुकूक की बात करना ये तो अक्ल व दानिश के खिलाफ है। इसे दीन और इस्लाम की बात को बाद में करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग अक्ल व दानिश से जंग लड़ रहे हैं, वो फितरत से जंग लड़ रहे हैं जो ये कहते हैं कि औरत के जिम्मा भी वही जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो मर्द के जिम्मा है। जाहिर है हुकूक और फराइज के दरमियान तवाज़ुन कायम तभी हो सकता है कि आप ये कहें कि मर्द और औरत के हुकूक भी बराबर हैं और मर्द और औरत की जिम्मेदारियां भी बराबर हैं। क्या एक औरत भी अपने कंधों पर वही बोझ उठाएगी जो एक मर्द उठाता है? क्या एक बेटी भी उतना ही काम करेगी जितना एक बेटा करता है? इस सिलसिले में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आपसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इस प्रोपेगेंडे से मुतासर न हो और इस बड़ी जो कुछ नमाज़ी गुफ्तगू है इससे किसी किस्म का मुतासर होकर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात और अपने दीन के मामले में कोई शक व शुबा अपने जहन में पैदा न करें। आप हकायक की तरफ जाएं और हकायक देखने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने बागीचे में अभी चले जाएं और उस बागीचे के किसी पौधे के तमाम जो वरक हैं और जो तमाम उसके शाखें हैं और उसकी जो तमाम वरक है उनको आप देखें, कहीं भी आपको मुसावात नजर नहीं आएगी, कोई ना कोई फर्क मौजूद होगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और एक औरत की तकलीफ में, उसकी नशो-नुमा में, उसकी साख में फर्क रखा है। बाकी जहां तक ताल्लुक है इस मुहिम का, इस तहरीक का, तो वो जो इस तहरीक को उठाने वाले और जो इस तहरीक के लिए और औरत को उसके घर से बाहर निकाल कर उसे घर की मलका रहने की बजाय उसे मजदूर और बाहर की दुनिया में एक नुमाइशी चीज बनाना चाहते हैं, वो खुलकर क्यों सामने नहीं आते? उन्हें इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ और जो हया है, जो बुर्का है और औरत के लिए मर्द हिसार बना हुआ है, इसके खिलाफ अगर किसी किस्म की उन्हें कोई तकलीफ है तो वो औरतों के पीठ के पीछे खड़े होकर मर्द बने और सामने आए और वो आकर कहें कि हमें इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की तालीमात से ये तकलीफ है और हम इस्लाम के मुकाबले में अपनी ये तहरीक लाना चाहते हैं। मर्द औरतों का सहारा न लें, औरत का कंधा इस्तेमाल करके उसके कंधे पर बंदूक रख के न चलाएं, बल्कि जुर्रत करें। हम उन जुर्रत के साथ उनका मुकाबला करेंगे, हम उनको जुर्रत के साथ ये समझा, हमारे सामने आना चाहिए, वो चेहरे सामने आने चाहिए। यूरोप है और आलमी बिरादरी है जिसका नाम कहते हैं, जो इल्हाद और बेदीनी है और फिक्री इंतशार है, जो खुद फिक्री इंतशार का शिकार है। किसी एक बात पर वो कभी भी मुस्तबे नहीं हो सके और किसी एक बात पर वो हमें कायल नहीं कर सके। वो आए जुर्रत के साथ ये कहें कि हम इस्लाम और इस्लामी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी मुआशरे के खिलाफ ये कुछ करना चाहते हैं, हम इस पूरे मुआशरे को खत्म करके इसकी जगह पे एक मादर पिदर आजाद मुआशरा लाना चाहते हैं।
तो फिर हम उनके साथ उस जुबान में गुफ्तगू कर लेंगे, उस लुगत में गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन अगर वो औरत को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और औरत के सर से चादर उतार कर हया उसका खत्म करके उसे मर्द के मुकाबले में लाकर इस्लाम की तालीमात पर कोई हमला करना चाहते हैं, तो ये तरीका मर्दों वाला और जरूरतमंद लोगों वाला, ये बुज़दिल लोग ऐसा करते हैं। जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त पूरी दुनिया में ये हो रहा है और ये कहा जा रहा है, खुद हमारे मुल्कों में भी ये कहा जा रहा है कि औरत जो है वो हर जगह पर बसों में कंडक्टर के तौर पे काम करे, दुकानों पर वो एक बिजनेसमैन और सेल्समैन के तौर पर काम करे। तो उनसे हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि एक मर्द नफ्सियाती तौर पर अपने घर बैठकर, एक बाप, एक बेटा, एक भाई, खुद मुराकबा कर ले, अपने गिरेबान में झांक कर थोड़ी देर के लिए सोच कि क्या जब कोई खातून, फितरी बात है, ये नफ्सियाती बात मैं कर रहा हूं, कि कोई खातून जब काउंटर पे खड़ी है जो आपकी अजनबी खातून है, जो आपकी माँ, बहन और बेटी नहीं है, तो आप उससे गुफ्तगू करते हुए आपके दिल में और आपके जज्बात में हिजान क्या होता है, आप जिनसी एतबार से क्या महसूस करते हैं। खुदा का खौफ होना चाहिए। जब आप किसी दूसरी खातून के साथ गुफ्तगू करते हुए आपका अंदाज और आपके दिल दिमाग के जो सोचें हैं वो ये होती हैं, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जब आपकी बहन, बेटी, माँ ये काउंटर पे खड़ी है और ये बाजार में खड़ी है किसी दुकान पे, तो जो अजनबी मर्द उससे आकर गुफ्तगू करेगा वो भी बिल्कुल उसी तरह करेगा जिस तरह आप किसी दूसरी अजनबी औरत के साथ करते हैं। इससे क्या माजरा बनेगा और आप क्या सबक देना चाहते हैं? मैं इस सिलसिले में पूरी गुफ्तगू का खुलासा जो है वो ये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक ताल्लुक है मुसावात का, हुकूक का, तो इस्लाम से बड़ा अलमबरदार नहीं है कोई औरत के हुकूक का और मुसावात का। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा है, आदल होगा तो मुसावात होगी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं आदल का। इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा दे। नहीं, उससे पहले सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातिह के तौर पर मक्का में दाखिल हुए हैं और बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा करने के बाद, बुतों को गिराने के बाद बैतुल्लाह के दरवाजे पर जो हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अल्लाह रसूलुल्लाह ने, आप यूं कहिए रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के आखिरी और सबसे बड़े नुमाइंदे ने, अल्लाह की जो वो अल्लाह जो कहता है कि मैंने ये सब कुछ पैदा किया, जो कहता है कि ये सारी मखलूक मेरा कुंबा है, वो जो ये कहता है कि मैं हर एक फर्द के साथ उसकी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, उसके सबसे आखिरी और सबसे बड़े नुमाइंदा और तर्जुमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के दरवाजे पर फतेह मक्का के मौका पर जो कहा, हालांकि वो कुरैश में से थे, वो बनु हाशिम में से थे और सामने जो लोग खड़े थे वो कुरैश और बनु हाशिम भी थे और उनके हम पल्ला कबीलों के और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा पढ़ते था उसमें यही फरमाया, इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम रहवतल जाहिलिय्यह व तअज़्ज़महा बिल आबा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। अल्लाह तबारक व तआला ने आज वो तुम्हारी नख़वत, वो तुम्हारा गुरूर जो अपने आबा व अजदाद और अपने कबीलों की बुनियाद पर किया करते थे, जो अपने रंग और नस्ल की बुनियाद पर किया करते थे, आज इस गुरूर की गर्दन तोड़ दी है और ये पैगाम है कि कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम आदल का दीन है और इस तरह का आदल पूरी अदियान और मज़ाहिब की तारीख में किसी और मज़हब, आप देख लें हिंदू मज़हब, हिंदू मत में आज हिंदू मत को आपने कबूल कर रखा है और आपने उसको आइडियल बना रखा है। वहां बेटियां वक्त कर दी जाती हैं बुतों के नाम पर और वो वहां के मजावरों और वहां के महंतों और वहां के पंडितों की हवस का निशाना बनती है और लोग समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी इबादत की है। आप ईसाइयत को देख लें, ईसाइयत में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ एक औरत का मुस्तकिल वजूद मौजूद रहा है और अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला है
मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मज़ाहिब पे गुफ्तगू नहीं करता, मज़ाहिब पे तनकीद भी नहीं करता। हिंदू मत में, यहूदियत में, मसीहियत में और इसके अलावा जिनको हम फिक्री कहते हैं लोग, मुख्तलिफ अफकार हैं दुनिया में, जिन्हें हम इल्हाद कह रहे हैं, जिन्हें हम बेदीनी कह रहे हैं, जो फलसफे हैं जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत को समझ लेना चाहिए। हकीकत नाम है उस अज़मत का कि जिसके पीछे अल्लाह और अल्लाह के नुमाइंदे और अल्लाह की वही और अल्लाह का कुरान और अल्लाह की किताब उसकी पुष्ट पर मौजूद हो, और जिसकी पुष्ट पर अल्लाह के अहकाम मौजूद नहीं है, उसकी पुष्ट पर अल्लाह के रसूल की कोई गुफ्तगू और कोई नसीहत मौजूद नहीं है, जिसकी पुष्ट पर वही इलाही का कोई सामान मौजूद नहीं है। वो क्या है? वो अल्लामा इकबाल मरहूम के एक शेर से वो बात समझ आएगी। शेर का ताल्लुक इससे तो नहीं है, लेकिन उस शेर का से ये बात समझ आएगी। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था कि हकीकत अबदी है मकाम शकीरी, और बदलते रहते हैं अंदाज़े सूफी शामी। यानी कुछ हकीकतें होती हैं और कुछ अंदाज होते हैं सूफी और शामी। हकीकतें कभी तब्दील नहीं होती और हकीकतें गालिब रहती हैं। आप देख लें कि उस मुआशरे में, सोवियत यूनियन में, जब 70 बरस तक कम्युनिज्म के नाम पर तमाम रियासतों को, जो इस्लामी रियासतें थी, उन पर कब्जा किया, वहाँ की तहजीब बदलना चाहिए, वहाँ की सकाफत बदलना चाहिए, वहाँ की औरत के सर से पर्दा उतारा, वहाँ उसको लिबास किया और वहाँ से मजहब को शिकस्त देना चाहिए। और ये कहा कि हमने अब मजहब को यहाँ से देश निकाला दे दिया है, लेकिन वो हकीकत मौजूद थी वहाँ। तो 70 बरस गुजरने के बाद उस हकीकत ने अपने पूरे कद के साथ खड़े होकर सोवियत यूनियन को तबाह बर्बाद कर दिया और उसकी शिकस्त रेस का सामान बनी। आज वहाँ समरकंद भी है, वहाँ भी है, वहाँ उज्बेकिस्तान भी है, वहाँ ताजिकिस्तान भी है, वहाँ वो तमाम हकीकतें, गोया हकीकतें वक्ती तौर पर तो उनको छुपाया जा सकता है, लेकिन अबदी तौर पर उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। फलसफे बदलते रहते हैं और ये जो अफकार हैं, जो इंसानी अफकार है, इंसानी ये तब्दील होते रहते हैं, हकीकतें नहीं बदलती। इसलिए मैं मुसलमान माओ बहनों और बेटियों और मुसलमान मर्दों को, माँ जो बाप है, जो भाई हैं, जो बेटे हैं, आज तैयबा.डॉट से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जरा इस पर ठंडे दिल के साथ गौर करें। किसी से मुतासर होने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर बैठकर मुराकबा करें और ये देखें कि जो कुछ पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले दिया था, और जिस चीज को पैगंबर दो आलम ने शिकस्त देकर जो चीज इंसानियत की दी थी, वो बेहतर है या जो शिकस्त खुर्दा निजाम था, अब उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इंसानियत के लिए बेहतर हो सकता है। आप जितना भी संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इंसान के लिए इंसान इतना हमदर्द नहीं हो सकता जितना इंसान के लिए उसका अल्लाह हमदर्द और खैरखा हो सकता है। और वो उसकी खैरखाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। एक बात को मैं खुलासे के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है हुकूक का, हुकूक नहीं दिए कम्युनिज्म ने औरत को, हुकूक नहीं दिए सोशलिज्म ने औरत को, हुकूक नहीं दिए हिंदू मत ने औरत को, हुकूक नहीं दिए यूरोप ने औरत को। औरत को यूरोप ने अपनी हवस का निशाना बनाया है, खिलौना बनाया है, और अपने घर बैठकर हमारे जहां मुआशरे में आप देखें, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप देख लें हमारे जो मुल्कों में, जो खास तौर पर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये मुल्क है, इनमें कुछ लोग होते हैं जिनको खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोशों का आप सारा निज़ाम देखें, उसमें यह है कि वो खैमे लगाकर जिंदगी गुजारते हैं और जहाँ चाह खैमे उतारे चले गए। ना उन्हें इल्म का पता है, ना उन्हें तहजीब का इल्म है, ना उन्हें लिबास पहनने का। लेकिन वो करते क्या? मर्द अपने खैमों के पास बैठे हुए सारा दिन ताश खेलते हैं, सारा दिन शतरंज खेलते हैं, सारा दिन हाउ हू करते हैं। औरतें जाकर कागज उठाती हैं,
मर्द जो है वो अपने वहीं बैठे हुए खैमों के पास, जिन्हें हम खाना बदोगे, वहां बैठे हुए ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं और न जाने क्या क्या खेल तमाशे में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते। उनकी औरतें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक जो जाती हैं गलियों में, कूचों में, बाजारों में जाकर कूड़े से तलाश करती हैं कागज और न जाने क्या क्या चुनकर उन्हें बेचकर फिर आकर इनको देती हैं। क्या ये इस निजाम को और इस तहजीब को लाने की कोशिश की जा रही है कि मर्द जो है वो तो अपनी टांग पे टांग रखकर जो है वो अय्याशी करने के लिए अपने घर में बैठा हुआ, औरत जो है वो सारा दिन अपना जिस्म देखती रहे और अपनी तवानाइयां जो है वो सर्फ करती रहे और रात को जब थक हार कर आए तो फिर वो औरत घर की काम काज भी करे। इस्लाम ने ये कहा कि मर्द थके, मर्द हारे, मेहनत करे, मजदूरी करे, हमने उसको जफाकश बनाया है, उसके जिस्म में तवानाई रखी है, वो मेहनत मजदूरी करे और कमा कर लाए, घर आकर फिर सुकून करे। औरत जो है उसे मुस्कुरा के मिले, औरत जो है उसकी घर की जिसे हम शरीक हयात कहते हैं वो उसको खुशामदीद कहे। और ये मर्द और औरत अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि जो तरबियत उस तरबियत के नतीजे में एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाए जिस मुआशरे पर रिश्ते भी रश करें और उन्हें अंदाजा हो कि हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है कि ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, लेकिन ये इंसानों ने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ऐसी नस्ल पैदा कर ली है कि जिस पर हम भी रश करते हैं। इन तमाम पहलुओं पर ठंडे दिल के साथ गौर करें और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप ठंडे दिल के साथ गौर नहीं कर सकते, हम तो गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम गुफ्तगू के लिए बाकायदा तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार है, हम मुकालमा करने के लिए तैयार है। दिल आखिर आप ठंडे दिल से गौर करने के बाद अंदर की जो रोशनी है, जो फितरत है, उसके मुताबिक भी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, हमारे साथ गुफ्तगू करें, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो कुछ पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें तहजीब दी गई, जो मुआशरत दी गई, जो तालीमात दी गई, उनसे ज्यादा बेहतर हमारे लिए कोई तालीम नहीं है, कोई मुआशरत नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। हम अपने उस बुरहान की बुनियाद पर, उस मुकालमे की बुनियाद पर, ये बात आखिर में मैं जुमला कह रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह मुसलमान मिलकर इस नई यलगार को भी उसी तरह शिकस्त देंगे जिस तरह पहले इस्लाम के खिलाफ होने वाली यलगारों और इस्लाम के खिलाफ होने वाले हमलों को हमने बर्पा किया, हमने शिकस्त दी। आने वाले वक्त में भी इस्लाम यालू अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, इस्लाम तमाम पहलुओं के मुताबिक गालिब रहेगा और दुनिया का कोई मजहब उस पर गालिब नहीं आ सकेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी तहजीब, अपनी मुआशरत, अपने दीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नस्लों को भी उसके साथ जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला